Vihar group of institutions and Vidya Vihar Career Plus. Our esteemed guest, Vikas sir, dear parents, achievers of today, and dear students, a very good afternoon to you all. We welcome you all into afternoon's felicitation ceremony Abhyuday 2025 to celebrate the excellence. You would be happy to know that several of our students have achieved All India high ranks in JEE as well as NEET. Now you would be very happy to know that our first topper, Bhaskar Arya, he has been offered BTech from IIT Patna as well as MBA from IIM Bodh Gaya. Now he has been given the hot branch of Artificial Intelligence and Data Science. He has been offered from IIT Patna. Besides this, the Triple IIT Bangalore has also offered him the branch of Computer Science. A big round of applause for Bhaskar Arya. Our second achiever, Raghav Misra. Now he has been offered hot branches from 3 different top-notch institutions of India. IIT BHU has offered him the architecture branch. IIT Patna has offered him material science. And the BITS Pilani, where we have 4 years program, 2 years in India, and it has patched up with collaboration with Melbourne University, 2 years spending in Melbourne University again. So BITS Pilani has also offered him seat. Please give a big round of applause for Raghav as well. Our third achiever, Abhay Kumar Shah. Now he has been offered hot branches from NIT Patna as well as NIT Silchar. Both of them are offering him mechanical branch. Again, a big hand for Abhay Kumar Shah. All 3 of these achievers have cracked the JEE and they have achieved good ranks in All India ranking. The fourth achiever, Anshu Bhagat. Now she has qualified the NEET and she is waiting for the counseling, and we are expecting her to get in some good MBBS colleges. Again, a big round of applause for Anshu Bhagat. Now we would like to welcome, before welcoming our distinguished guest, we would request Principal Sir, Vikas Sir, Prashant Sir, and others to please दीप प्रज्वलन करके इस प्रोग्राम का विधिवत उद्घाटन किया जाए. Please sir. Vice Principal sir, please. शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. Although he needs no introduction, but still I would like to devote a few words for sir, as well as private MBBS colleges. Sir has written more than 500 articles and he regularly appears on TV channels. What achievers we are seeing today, as I said in the very beginning, he is one of the architect of that one. Thank you, sir. And now we would like to ये क्षण गौरवान्वित करने वाला क्षण है. आज अभय के माता पिता कितने खुश होंगे ये हम सभी फील कर सकते हैं. किसी भी माता पिता के लिए ये गौरव का क्षण होता है. A big round of applause for Anshu Bhagat and his parents and her parents. Honorable senior teachers, vice principals, प्यारे बच्चों,
आज का दिन मेरे लिए बड़ा खास है और ये जो उपलब्धि है ये एक मनीषी के तप की अनवरत प्रयास, जो विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल के रूप में जिसको विभिन्न शिक्षकों ने सींचा है, प्रधानाचार्यों ने सींचा है और जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे फिर विद्या विहार कैरियर प्लस की तरफ से मेंटेनिंग के बाद हासिल हुआ है। मुझे बहुत बात नहीं कहनी है। मैंने जो पीपीटी भेजा था काइंडली दे दें, प्रशांत से भेज दें। आज का मूल विषय 2 है। मैं पहले जानना चाहता हूँ बैठे कौन कौन है। जो लद के बैठे हुए सीधे होकर बैठ जाइए बच्चे लोग, देखो किसी का मुंह नहीं दिख रहा था। हाँ ठीक है, एक एक करके पूछते हैं। स्टैंडर्ड 12 में कोई बच्चे हैं तो हाथ उठाइएगा। ओके, मैं अटेंडेंस देख ले रहा हूँ कौन कौन आया है यहाँ पे। 12th वाले जिसको यहाँ आना चाहिए था वो कम संख्या में है। ठीक है, ज्ञान का बोझ 11th से आते आते हैं। 11th वाले हाथ उठाइए। हाँ 11th वाले जोश में होता भी है, 12th वालों की उम्र हो जाती है, 11th वाला झंझट है। ठीक है, 10th वाले हाथ उठाइए। अच्छा, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 9th वाले बच्चे हाथ उठाइए। 2 बार नहीं उठाना है, अब दोनों हाथ नहीं। ठीक है, हाथ नीचे। 8th वाले हाथ उठाइए। वाह अरे वाह, क्या एकदम आर्मी की तरह हाथ उठाया, खटाक जैसे जय हिंद की तरह। हाथ नीचे, एक बार फिर से हाथ उठाओ जाते लोग। क्या बात है, सीखो 12th वालों, देखो बच्चों से। ठीक है, नीचे 8 से ऊपर बच्चे हैं सर, नीचे भी है। ठीक है, 8 दीजिए। मैं 10 से 15 मिनट आपको छोटी छोटी बात कहूँगा। प्रशांत सर, एक और फोटो मैं आपको भेजा हूँ, काइंडली आप उसको यहाँ भेज दें। नहीं थी, 8 से भी बच्चे हैं, इसलिए हमने रीओरिएंट करके जितनी बात कहनी थी उसकी आधा ही कहूँगा, बाकी क्लास वाइज आगे करूँगा। नेक्स्ट प्लीज। मैं जो काउंसलिंग कर रहा हूँ यहाँ प्रिंसिपल सर को जब जब मैं सुना हूँ यहाँ पे, हर बार उन्होंने कहा है कि नंबर तो लाना पड़ेगा पर जीवन के अध्याय को सीखना पड़ेगा। बड़ी हिम्मत से ये स्लाइड लगाता हूँ। मैं अभी पहले यूज़ नहीं करता था, पर एक बार नहीं बार बार प्रिंसिपल सर जब भी आए तो हर चीज़ की बात करते थे। और यही आपके स्कूल का उद्देश्य है। एज ए काउंसलर मुझे एक बात कहनी है, योर गोल ऑफ लाइफ इज सक्सेस एंड हैप्पीनेस। पर हैप्पीनेस आपकी ही नहीं, आपके पेरेंट्स के भी, आपके घर वालों की, आपके शिक्षक की भी। सक्सेस की परिभाषा अलग है, हैप्पीनेस की भी अलग अलग है। पर आप सब जितना समझ रहे हैं, सफल बनना है और सुखी बनना है। हर सफल व्यक्ति सुखी नहीं होता है और हर सुखी व्यक्ति सफल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। मैं 2004 में एज ए काउंसलर डीपीएस बोकारो ज्वाइन किया था। 2005 में मैं फिटजी बोकारो में था। फिर मैं ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स में रांची में आया और 2013 में मैंने अपनी संस्था स्टार्ट की। मैं 2013 से जब अपनी संस्था स्टार्ट की, जहाँ जहाँ जाते थे हमें कई लोग सुझाव देते थे, विकास सर सक्सेस स्टोरी बताइएगा। मेरे मन में एक ही बात थी कि उधार की सक्सेस स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। और इस साल पहली बार ये बच्चे 2005 में 10th किए थे, तो जो बच्चे 11th थे, यू को 10, इन सभी बच्चों को मैं 10 से जानता हूँ। और आगे आने वाले दिनों में इसी जगह मेरी खुशी ये होगी कि आप ही के बच्चों की श्रृंखला मैं सुनाऊंगा। बाकी प्रिंसिपल सर के पास तो पूरा रिकॉर्ड है स्कूल में जो सक्सेस है, चाहे डाउट नट वाले हों चाहे जो हों। ये 3 बच्चे हैं। इस बैच में लगभग 40 बच्चों को मैं डायरेक्ट जानता हूँ, क्योंकि पहला साल था मेरा डीपीएस में, वो सभी बच्चे जान रहे थे। मेजॉरिटी बच्चे फिटजी में आए थे वहाँ। तीनों सक्सेस स्टोरी है। एक जो मेरा मैसेज देना चाह रहा हूँ, हर सक्सेस एक जैसा नहीं होता है। पहला बच्चा है, ही इज अमन कुमार। ही इज प्रेजेंटली एसपी इन गुमला। इसके पहले ही वॉज एसपी इन खूंटी। उसके पहले जमशेदपुर में थे और उसके भी पहले मेरी बड़ी इच्छा थी जब मैं बच्चों की कि भाई रांची में कोई एसपी डीसी आए जिसकी गाड़ी पर बैठे। देखो देश 3 लोग चलाते हैं, पीएम डीएम सीएम, पीएम सीएम डीएम, ये सामान्य भाषा है। तो मेरी इच्छा पूरी हुई जब ये आए। इनके बारे में बताना चाहते हैं कि ये 8th क्लास तक सरकारी स्कूल में पढ़े। सरकारी मतलब शुद्ध सरकारी, जहां वाकई ये बोरा लेके बच्चा गया था। इनका घर है राजधनवार गिरिडीह में।
9th में भी ये सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन नवोदय विद्यालय में पढ़े जहाँ पढ़ाई की अपनी व्यवस्था है। 11th में डीपीएस बोकारो में आए और फिर जी में ज्वाइन किए थे, तब से संपर्क इनसे हुआ। 2 साल इन्होंने पढ़ाई अच्छी की। 11th में ये भी उल्टे थे, ओवर कॉन्फिडेंस से। 10th में नंबर आने के बाद 11th में बच्चे सोचते हैं कि वैसे ही चलेगा, पर ये संभल गए। इनका सिलेक्शन आईआईटी खड़गपुर में हुआ। इंटरनेट फेसबुक नया में आया था, हम लोग 2010 से स्टार्ट कनेक्टेड थे इन बच्चों के साथ। 2011 में जो आईआईटी पास आउट कर गई है, तो इन्होंने फेसबुक पे कविता लिखी, तो मैंने लिखा एक्सेलेंट। 3 दिन के बाद दूसरी कविता आई, मैंने लिखा वेरी गुड फेसबुक पे। फिर 7 दिन के बाद तीसरी आई, मैंने लिखा गुड। फिर 10 दिन के बाद चौथी कविता आई। हमने उसके मैसेंजर में कहा पढ़ना लिखना छोड़ दिया हो क्या, रोज कविता लिख रहे हो, क्या हुआ प्लेसमेंट नहीं मिला क्या? बोले नहीं सर, मेरा प्लेसमेंट हो गया है, मिशी जापान मुझे प्लेसमेंट हो गया है, पर मुझे प्लेसमेंट नहीं लेना है। अभी अलग बात, ठीक है, मेरा डिसीजन सही है कि नहीं? हमको आज तक, ये 2011 की बात है, कि मुझे किसी से भेंट ही नहीं कि जो ऐसा डिसीजन लिया होगा, ठीक है। फिर अक्सर आपको क्या लगता है मैं आईएएस आईपीएस बनना चाहता हूं, बन जाऊंगा? तो मैंने एक बात कहा, जब तक तुमको दूसरे से पूछने की जरूरत पड़ेगी कि बनूंगा कि नहीं बनूंगा, तो नहीं बनोगे। लालू जी वाला सुनो, ममता बनर्जी वाला, नहीं मांगे तो नहीं मिलेगा, तो वही वाला है, नहीं चाहिएगा तो नहीं होइएगा। सिर्फ रैंक की लड़ाई लड़ी जा सकती है, सक्सेस की लड़ाई नहीं। हर बच्चा जो करता है अपने संकल्प से, और बाकी चैलेंजेस भी आते हैं, ठीक है। और ये क्वालिफाई। अब इसके बाद इन्होंने तैयारी की दिल्ली में। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इनका मेंस हो गया, फाइनल नहीं हुआ। सेकेंड में भी इंटरव्यू में भी हुआ, पर इनका जो सिलेक्शन था वेटिंग लिस्ट में था। यूपीएससी में उस साल मुझे लगता है 800 से 1000 सीटें आई होगी, और इनका नाम वेटिंग लिस्ट में था। आपको ये बता दें, यूपीएससी में वेटिंग लिस्ट रहती है। 22 बच्चों का था। ही वॉज फॉर्चुनेट, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये रूटीन टेस्ट में नहीं आया। हाँ, अब लग रहा है कैमरा लाइट आ गया है, ठीक है। तो 22 बच्चों को कॉल किया गया, और इसको सीधे झारखंड का आईपीएस कैडर मिला, और ही ज्वाइन एज एसडीओ समवेयर, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पलामू में। फिर ये एसपी बने रांची के। इनकी एक खास बात और थी, जिस दिन ये एसपी बने उस दिन तक इनके पिताजी क्या करते थे मालूम है? वो गिरिडीह झारखंड बस के कंडक्टर थे। अगर उस परिवेश का बच्चा कुछ कर सकता है, और उस सामान्य शिक्षा से भी, तो आप सभी लोग कुछ न कुछ अच्छा और जबरदस्त जरूर कर सकते हैं। और वहां से थी, और मेरे जब पिताजी से भेंट हुई, बोले सर हम लोग इतने सोचते थे कि हजारीबाग में जाके कुछ कर लेगा, हमारे गांव का बहुत लोग दुकान खोला था। वैसे एस्पिरेशन का बच्चा, परिडिटरमाइन, और एक क्वालिटी बता दें, ये जितने बच्चे हैं ना जो सक्सेस में, हर बच्चा शिक्षक के साथ बड़ा विनम्र रहा। ये महत्व बहुत कम बच्चे समझते हैं, और आशीर्वाद मिला माता पिता के अलावा शिक्षकों का भी। तो ये गए, अभी जैसा बताया पलामू में एसपी हैं। सेकेंड गर्ल अंशिका सिन्हा, इससे भेंट मेरी 2004 में ही डीपीएस बोकारो में हुई थी। और जब काउंसलिंग क्लास में गए थे तो पता चला, अपना इंट्रोडक्शन किया 10th में, कि सी इज बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट टॉपर। तो हम लोग तो यहाँ से गए थे, मेरा भी घर मुंगेर है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो हम थे इसका तो कुछ नहीं होगा, बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। रिजल्ट आया, टॉप पर्स में से एक थी, 92% प्लस था, उसमें 96-98 का चलन 2005 में नहीं आया था। इसने भी 2 साल बड़ी मेहनत की, पर इसने आईटी क्वालिफाई नहीं कर सकी। ये आईटी क्वालिफाई नहीं कर सकी, और उस समय इसने पहली बार मैंने उस कॉलेज का नाम सुना, कहा कि सर पेरेंट्स को बोल दीजिए, आप बोल देंगे तो जाने देंगे। मैं कहा मुझे खुद ही कॉलेज का नाम नहीं पता है। तो मैं फिर पेरेंट्स की इनकी तरफ से गया, कहा कि भाई सर इनको जाने दीजिए। तो पेरेंट्स ने कहा मालूम है कॉलेज का नाम क्या है? कॉलेज का नाम, मैंने कहा सर मणिपाल में जाना चाहती है। बोले सर ये मणिपाल नहीं है, ये मणिडाल है, खाली पैसा मांग रहा है, होगा क्या पता नहीं। पर बहुत क्लियर था, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक अ ड्रॉप। ये बच्चे पर निर्भर करता है कि नहीं हम इसी साल जाएंगे।
शी वेंट टू मणिपाल, वहां से ये गई, इसको प्लेसमेंट एचपी में मिला, हैवलटन पैकेट में, और अच्छा पैकेज मिला। जो उस समय कई जो आईटी के टॉप रैंकर से सेकंड ब्रैकेट वाला होगा वो सैलरी इसको मिली एचपी में मणिपाल से। 5-6 महीने नौकरी हुई होगी, इसकी मम्मी का फोन आया, वो लोग पटना में रहते हैं अभी, कि सर देखिए ना पगला गई हमें। क्या हो गया भाई? बोले सर बोल रही है नौकरी छोड़ेंगे और थिंक एंड लर्न कोई कंपनी वहाँ ज्वाइन करेगी। बताइए, आप जानते हैं हम मैडम हम दुनिया में सब चीज़ कैसे जानेंगे, अभी आपसे हम नाम सुन रहे हैं। फिर मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई मम्मी पापा परेशान है, तुमने एचपी छोड़कर ये थिंक एंड लर्न क्या है? बोला सर आपने थिंक एंड लर्न नहीं सुना? मैंने कहा नहीं सुना। कहा सर ये बैजू रविंद्रन का नाम सुना आपने? मैंने कहा नहीं सुना हूँ। ये 2013 के आसपास की बात है उस चीज़ के लिए। कहा सर मुझे यहाँ पे IM करना है, मेरी जो इज्जत गई है 12th में, मैं उसको मेकअप करूँगी और IM जाऊँगी। कई बार जीवन में एक चीज़ नहीं होती है तो वो पॉजिटिव रिजॉल्व बनता है बच्चों का। और बोले सर यहाँ मुझे नौकरी भी मिल गई है, पढ़ाना भी है। और मैं बता दूँ आज जो बैजूस का देखा अपने ग्रोथ, 2013 में बैजूस की क्लासेस डिफरेंट IITs और BIT मिश्रा में भी ऑनलाइन चलती थी। ये अभी कोरोना वाले वेव से बहुत पहले उन लोगों ने बहुत काम किया, वहाँ गए और फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका IIM अहमदाबाद में हो गया। IIT नहीं हुआ लेकिन आगे हुआ। मैसेज आपको देना चाहते हैं कि हर बच्चा सफल होगा, अपना अपना रास्ता है। फिर क्या किया, इसका प्लेसमेंट हुआ टैस में। इसने फिर कहा सर मेरा टैस में हो गया है, तो हम बधाई दिए, तो उसको लगा होगा कि उतनी खुशी हम जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। वैसे आप टैस का नाम सुने? हम पहली बार सुन रहा हूँ। टैस क्या है? टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जिस तरह UPSC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, टाटा की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पूरी जो टाटा को कमांड टैस करती है और टॉप 5 IM से ही लेती है और बहुत अच्छे पैकेज पे हुआ। फिर उसने काम किया, करते करते जीवन में अच्छा कर रही है। ये दूसरे बच्चे हुए। ये तीसरे वाले अमृतराज, ये उस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पहले से ही चलन रहा है कि टॉपर बच्चे एक जगह रखते फिर बाकी सेकंड थर्ड लेवल में। ये थर्ड वाले लॉट में था। बोकारो छोटा शहर है, सिटी सेंटर में फिरजी थी। शाम में एक बार ऐसे निकले तो देखे कि पंक्चर की दुकान पे 4 लड़का खड़ा है। तो हमें क्या कर रहे हो भाई, क्लास तो तुम्हारा वहां है। तो बोला सर एक बार मेरा दर्द सुन लीजिए। हमने सुनाओ। बोला सर क्लास में जो कोचिंग में हो रहा है वो कुछ पढ़ने नहीं पड़ता है, और घर जाएंगे तो बाबूजी बैठने नहीं देंगे, फीस बहुत दे दिए हैं। अब हम करें क्या, इसलिए यही हम लोग समय बिताते हैं और छुट्टी होने के समय चले आते हैं। हाँ ये भी चैलेंजेस है, कोचिंग से हर कोई बेनिफिट हो जाए ऐसा नहीं होता है करना, पर ठीक है समझाया बुझाया, पेरेंट्स को बुला करके फिर बच्चे पढ़ने लगे। सारे बच्चे धीरे धीरे करके रास्ते पे 12th में आ गए। 11th में नहीं आए हैं तो 12th में आएंगे। ये लड़का NIT जमशेदपुर में, इसको मटेरियल साइंस मिला। उस समय NIT जमशेदपुर में सबसे नीचे यही था। फिर अपग्रेड करके मिला, जॉब ज्वाइन किया। 1.5 साल बाद ये रांची आया। मैंने बोला सर एक नया काम शुरू किए हैं। हमने आप बताओ क्या किए हो? बोला सर एक कंपनी बनाए हैं लैब कैफे, 6 महीना से काम चल रहा है, टीम बन गई है। तो ठीक है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर इसने लगातार अपडेट दिया। आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे लैब कैफे टर्नओवर, इसकी टर्नओवर 300 करोड़ से ऊपर है, जो सबसे कमजोर था पढ़ने में। जीवन में बहुत अवसर मिलते हैं, आपको तय करना है कि क्या करना है। जो बच्चे 8 to 10 में हैं, एक ही लक्ष्य है, खाता न बही, स्कूल जो कहे वही सही। हाँ ये मैं प्रिंसिपल सर सामने से नहीं बोल रहा हूँ, यही सत्य है। और एक्स्ट्रा जो करना है कीजिए, एडवांसमेंट जिसका स्कूल हो जाए आप आगे की बात कीजिए। 11th 12th में भी वही है। नेक्स्ट प्लीज। ये 3 बच्चे हैं रांची के। मैं कह रहा हूँ ऐसी मैंने लिविंग सक्सेस स्टोरी हर साल की 20 से 30 है पिछले 20 वर्षों में, उसमें से कुछ को चुना। जब पहला बच्चा है अंकित जैन। आज अभय से बात हो रही थी, अभय के पापा मम्मी से भी, तो पता चला कि अभय बहुत आने का पूरा मन नहीं था। मम्मी पापा कहे चलो बुलाया गया है तो चला जाए, तो संजोग थे उसी चीज़ के लिए। ये अंकित जैन है, एकदम ये बेस्ट रैंकर है जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ। इसकी ऑल इंडिया रैंक 30 आई थी 2019 में, और ये बिहार झारखंड का IT का टॉपर था। जिस दिन इसका सम्मान समारोह था, इनके पिताजी से उस दिन भी भेंट हुई, तो मैं 30 रैंक उस समय, उसके ऊपर एक ही बार रांची से AIR 9 आया था, फिर 30 आया, अभी तक फिर वो 30 आया नहीं है। तो मैंने बधाई दी तो पिताजी के चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखी।
मैंने कहा देखो, उनको भी लग गया कि मैं थोड़ा एनॉयड हूँ, तो मुझे बधाई दिया। तो उन्होंने, पिताजी ने जो कहा सुन लीजिए और बच्चे लोग ध्यान रखिए, हर माता पिता के दिमाग में चलता है। जानते हैं ना सर, एक ठो क्वेश्चनवा कर लेता तो ऑल इंडिया रैंक 10 हो जाता। तो कष्ट कभी खत्म नहीं होगा। जिनको लगता है कि आप जीवन में सफल तब होइएगा जब रैंक आई है, 30 रैंक वाला ऐसे खड़ा था सीधा, हाँ जैसे कितना गुनाह कर दिया होगा। हमें क्या सोच रहे हैं, बोला हाँ सर ये क्वेश्चन तो हमसे हो जाता, पापा ठीक बोल रहे हैं। ये अप्रोच भी रहता है। तो इस बच्चे ने एक बात कही, जो चूंकि स्कूल कोचिंग दोनों है, मैं एक तटस्थ बात से कहना चाहता हूं, दोनों प्लेटफॉर्म के लोग हैं। इस बच्चे ने एक बात कही, ये डीपीएस रांची का थ्रू आउट टॉपर रहा। इसने एक बात कही जो 11th-12th में सब कुछ आता, 10th तक मैंने क्या कहा, खाता ना भाई, स्कूल जो कहे वैसे ही। 11th-12th के चैलेंजेस अलग है जो पीसीएम पीसीबी है। इसने कहा स्कूल का काम है बोर्ड रिजल्ट और कोचिंग का काम है कंपटीशन। स्कूल में कई बार ऐसा लगता है कहने के लिए कि नहीं भाई स्कूल कर लोगे सब कुछ होगा, ऐसा नहीं होता है। पर ये 10% के लिए 90% को स्कूल ही नहीं होता है, तो याद रखिएगा। इसने कहा कि यू हैव टू बैलेंस द बोथ, और स्कूल का बेसिक जरूरी है, तभी आप आगे कर पाओगे। इसको गांठ बांध दो 8 to 10 वालों, 11th वाले, 12th वाले भी। और ये सारे बच्चे 10th तक, ये जब स्पीच देते हैं कोचिंग में ना, ये 10th तक ये बच्चे 11th-12th की बेसिस कर लेते हैं, और फिर आकर के कहते हैं कि मैं तो स्कूल का पढ़ता नहीं हूँ। इनका मैं रिकॉर्ड निकाला हूँ, ये सारे बच्चे डीपीएस के मंडे टेस्ट में 25 में 24 और 25 लाते हैं। ये तो आप सीख लेते हो कि कोचिंग जाना है। और देखो भाई दोनों मंच के लोग हैं यहाँ पे, ये तो तटस्थ बात है। तो उसके स्कूल में भी नंबर लाना पड़ेगा। स्कूल में नंबर कम ला करके आईटी नहीं होता है। प्रिंसिपल सर हर बार इस बात को कहते रहे, मैं कभी बीच में कभी नहीं कहा, मेरा दिन तय था कि मैं अपने मन की बात कहूँगा, मेरा स्टैंड क्या है, वही स्टैंड है प्रिंसिपल सर जो आपका स्टैंड है। जिसको जरूरत है वो करेगा, जिसको नहीं है बेसिक्स में रहेगा। दूसरा बच्चा शेरिक, ही इज द बेस्ट रैंकर दैट आई हैव बीन माय काउंसलिंग प्रोग्राम, ऑल इंडिया रैंक। ये इनका था 12 AIPMT में, 2015 की बात है। ही वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट जिनसे काउंसलिंग हमने मेडिकल शुरू किया। हमको तो, मैं तो साइकोलॉजी वाला ठहरा, मुझे इंजीनियरिंग समझने में वक्त लग गया। पेरेंट्स पकड़ते हैं तो आगे जाते हैं। ये भी काउंसलिंग में लगातार टच में रहते थे, बहुत अलर्ट पेरेंट थे। संजोग ऐसा रहा कि एग्जाम के 7 दिन पहले मुझे घर लेके गए, फीलिंग मुझे आई कि एकदम विजिटिंग डॉक्टर की तरह। खैर ठीक, कुछ बातें हुई। जब रिजल्ट एम्स का आया, उस समय एम्स अलग होता था, तो मैंने इनको फ़ोन किया। जैसे पता चला, भाई साहब ने फ़ोन इनके पिताजी ने नहीं उठाया। दोपहर में फ़ोन किया, नहीं उठाया, शाम में नहीं उठाया। मैंने कहा देखो नंबर आ गया तो भाव बढ़ गया। मेरे मन में यही चला। रात में इनका फ़ोन आया, सर फ़ोन किए थे? मैं बिल्कुल किए थे। मैंने भन्ना के कहा कि मिठाई नहीं खिलाना है तो मत खिलाइए, पर बताते तो नहीं क्या रैंक आया। तो सर बहुत ख़राब रैंक आया। अच्छा, अब कितना रैंक आया? ऑल इंडिया रैंक 72। बताइए फिर खराब क्यों हुआ? एम्स में उस साल जनरल कैटेगरी कट ऑफ 38 थी, 38, और इसको एम्स देना। और आप समझिए इतने डिस्टर्ब हो गया, उसने जिपमर दिया था, 1 महीना गायब रहा, और वो फिर चला गया जिपमर, वहाँ पे एडमिशन ले लिया पौंडीचेरी में। फिर जब AIPMT का रिजल्ट आया तब सामने आया। हमने उसके साथ एक ज़बरदस्ती किया, मेरे इनके पिताजी के साथ मिल के हम लोगों ने इसका IT का ये PCM भी लिया था। हम लोग मना कर रहे थे लेकिन लिया, फॉर्म भरा दिया। फिर 2 सब्जेक्ट कमांड का, इसका रैंक 2800 आया था। फिर ये काम सबको नहीं करना, PCM भी आसान रास्ता नहीं है। 2 सब्जेक्ट भी कमांड करते हो तो बेटा रैंक, पूरी जो बहुत टफ लड़ाई है ना, वो AIR 100, 500, 1000 की है। उसके बाद लड़ाई धीरे धीरे आसान होती है, और जितना टफ पहले था और उतना टफ नहीं है। थर्ड गर्ल इज अस्मी अनमोल होमकर। ये 2025 में भी पास आउट की है। 2023 में इसके पेरेंट आए थे, इनके पापा IG हैं झारखंड में भी, मम्मी आई थी साथ लेकर के, और इन्होंने कहा था उनकी मम्मी की इच्छा थी कि बायोलॉजी पढ़ा देना है, और मुझे सेट किया गया था कि बायोलॉजी समझा देने का। मैं वो करता नहीं हूँ क्योंकि वो मुझे सूट नहीं करता, बच्चों को नुकसान। तो मैंने कहा कि नहीं, ये जो करना चाहती है करने दीजिए। पिताजी उस समय तो बात हाँ हाँ करके चले गए। बाद में पता चला कि DPS में बायोलॉजी को दिला दिया गया है। ठीक है, ये बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते 1 साल के बाद इसके दिमाग में घुसा
कि अब बहुत हो गया, मुझे लॉ करना है। इसने तैयारी की, क्लैट में इसको ठीक ठाक रैंक आया, बहुत अच्छा नहीं आया, पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लोअर ब्रांच में मिल जाता। इंडिया में 26 लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कि 25 में दाखिला क्लैट से होता है, जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स ले रहे हैं चीज़ के लिए। और फिर आपको एक में दाखिला NLU दिल्ली में AILET से होता है। इसके अंदर का स्वाभिमान जगह, IPS पुत्री का अभिमान जगह, ये पढ़ने बैठी और ये ऑल इंडिया रैंक AILET जो क्लैट से उसमें 23 रैंक लाई। 23 रैंक कहने का मतलब, जब जागो तभी सवेरा, जिस दिन आप चाह लेंगे उस दिन आप कर लेंगे, पर चाहना होगा समय से। तो इंजीनियरिंग और मेडिकल लेने के बाद भी कई बार बच्चे दूसरा रूट लेते हैं, आपको डिसाइड करना है और आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। He was first student who came to me in the counseling center in 2013. नाम प्रियांक किशोर, जमशेदपुर के टॉपर थे। हमारे ऑफिस में नया नया खुला था, AC एकदम नया लगवाए थे। इस बच्चे ने एक सवाल पूछा कि मुझे पसीने आने लगे, और मैं 2 मिनट थम करके कहा, बेटा 2 दिन बाद आना। सवाल क्या था? चूंकि मेरा पूरा एक्सपोजर उस समय तक जो था DPS का था, फिटजी का था, ब्रिलियंट का था, इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और जो है। इसने कहा कि सर मैं जमशेदपुर का टॉपर हूं और मैं इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे IAS बनना है और मुझे कॉमर्स लेना है, तो आप बताइए कि मैं सही हूं या नहीं। अब इसका आई वॉज सर्टनली अबैक। क्यों? ईश्वर की कृपा थी कि मैंने उसे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि 2 दिन बाद आना। फिर मैं कई बच्चों से बात किया, भाई इतना टफ क्वेश्चन, इतना सीधा सा बात है, सीधे पूछ रहा है कि मुझे करना है, आपको लगता है कि मैं सही हूँ कि नहीं? क्योंकि ये क्रेज है और अभी भी है। UPSC में साइंस बैकग्राउंड की संख्या ठीक ठाक रहती है, पर ये जो क्वेश्चन था कि मुझे नहीं करना और IAS में करूंगा कि नहीं, आपको क्या लगता है? फिर मैं जब बात किया, इसको फिर बुलाया 2 से 3 दिन के बाद। इनकी पिताजी अभी DSP हैं झारखंड में। मैंने कहा कि देखो ऐसा है, जो मैंने समरी किया सभी बच्चों से, जब बात की, कुछ लोगों से फेसबुक पे, 1-2 से फ़ोन पे, 3-4 बच्चे जो UPSC क्वालिफाइड से बात किए, उन्होंने एक बात कही और वही बात मैंने इसको कहा। सबने कहा कि सर इंजीनियरिंग मेडिकल का कोई रिलेशन तो है ही नहीं। रिलेशन क्या होता है? जब आप ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स लेते हैं, आपको लगता है कि 1.5 साल आराम करो, बोर्ड एग्जाम देंगे, निकल जाएगा कहानी। इतना ही फर्क पड़ता है। 2 साल जो मेहनत का गैप होता है ना, वो आदमी को बढ़ने नहीं देता है। फिर कॉम्पिटिटिव कोचिंग में दिक्कत होती है। या UPSC के लिए बात हुई, बच्चा चला गया, दिल्ली में एडमिशन लिया। मुझे ठीक से याद है तो मोस्ट प्रोबेबली किरोड़ीमल कॉलेज में लिया होगा। पढ़ाई किया इन्होंने और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। और ये उस दिन की तस्वीर जो मेरे ऑफिस में आई थी, ये पुराना ऑफिस है। मैंने इसे बधाई दी। फिर मैंने कहा कि क्या प्लानिंग है आगे? कहा सर आपको याद है मैंने क्या कहा था? हमें याद है, तुमने कहा था मुझे IAS बनना है। बोला आप, मेरा रैंक बहुत खराब है। अच्छा कितना है भाई? 254, ऑल इंडिया रैंक 254। बोला सर इसमें हमको IAS तो नहीं मिलेगा। अच्छा क्या चाहते हो? बोला सर कल की फ्लाइट से मैं वापस जा रहा हूँ और मैं अपने से तैयारी करूंगा, कुछ कुछ जो टीचर्स हैं उनसे मटेरियल लेकर के करूंगा। नेक्स्ट इवेंट फिर तैयारी किया इसने। अगली बार जब प्रीलिम्स दिया, उसने एक लाइन लिखा, और सभी IT मेडिकल सभी एक्सपीरियंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने लिखा फर्स्ट बॉम्ब डिफ्यूज्ड। जो मैं कह रहा हूं ना कि करने वाले पूछते नहीं है, एग्जाम के बाद उसको पता होता है कि मेरा हो गया, उसी का होता है। प्रीलिम्स निकाल लिया, फिर मेंस 69 है। और ये 2 तस्वीरें थी, एक ही मुझे मिला अभी इधर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों से मिलने का मौका मिला। अभी गोवा दमन एंड दीव में इनकी पोस्टिंग है। तो जीवन में हर आदमी सफल हो सकता है। हर का रूट किसी सक्सेस स्टोरी को कॉपी नहीं करना है। ईच सक्सेस स्टोरी इज डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ये 2 बच्चे जो हैं, ये जो रिजल्ट है, ये इस साल का रिजल्ट है। ये है क्लैट की झारखंड टॉपर। आपको बता दें, जिसमें भी आप टॉप कर सकते हैं वो आपको जाना पड़ेगा। और सेकेंड गर्ल इज वैष्णवी स्वधा, ये ह्यूमैनिटीज की झारखंड टॉपर है। प्रशांत सर आपको मैंने एक फोटो भेजा है,
उसको काइंडली यहाँ भेज देंगे डिस्प्ले के लिए। अब ये जो लड़की है ये ह्यूमैनिटीज करके भी IIT बॉम्बे जा रही है। दुनिया बदल गई है, चीजें बदली हुई है, सबको समझना है। और विद्या विहार समूह आदरणीय श्री राजेश मिश्रा सर का विजन है कि हर ऑप्शंस की जानकारी दे, और हम लोग प्रयास करते रहे पिछले 2-2.5 वर्षों से। सिर्फ इंजीनियरिंग मेडिकल की बात नहीं, और इस साल और दम लगाएंगे जो 12th वाले हैं CUET एग्जाम्स के लिए। इस लड़की का ऑल इंडिया रैंक आया 12। एग्जाम कौन सा? यूसीड। यूसीड एक परीक्षा है जिससे आपको सीट कितनी है, सिर्फ 30 टोटल, 30 सीट में क्वालिफाई किए। और कभी 10th में उतनी मेरिटोरियस नहीं थी, इसके ऊपर 20 बच्चे थे, 20 से ज्यादा स्कूल में। और ये बॉम्बे पहुंचेगी अभी आज की डेट में। इस साल IIT दिल्ली में भी यूसीट के अलावा जे एडवांस का क्राइटेरिया डाला गया है। अलग अलग कॉलेजेस में यूसीट भी है, यहाँ पे आपको डिजाइन में आपको डिग्री मिलती है। तो ये जो चीजें हैं हर बच्चा अपने अपने तरीके से सक्सेस करता है। इसके अलावा बहुत बातें हैं, इसको अभी विराम देंगे, फिर हम लोग जो टॉपर स्टॉक जिसके लिए आप लोग हैं उस पर बात करेंगे। तो सर टॉयलों को बुला लिया जाए, प्रशांत सर नहीं वो ठीक है, बच्चों को बुला लें। यहाँ जो कुर्सियां लगी हैं, जो टॉपर्स हैं सब भास्कर, राघव, अभय, अंशु, जोरदार ताली बजाइए। हाँ भास्कर राघव इधर आ जाओ, राघव दोनों एक साइड। एक फोटो मैंने भेजा डिस्प्ले, देखिएगा, फिर उसके बाद मैं इनका टॉक शो बढ़ाता हूँ। इसको नीचे कर रहती है। हम लोग का बच्चा रोल मॉडल बने, हर चीज में बने, और लोगों को खुशी हो कि अपने पूछना होगा पूछेंगे। क्यों पूछना चाहिए, इनकी तारीफ में 2 शब्द हम भी बताएंगे कि क्या इनकी उपलब्धि रही। जैसा भी आपको बताया जा चुका, इस साल फर्स्ट फुल फ्लेजेड ईयर है। मैं आज एक फोटो लेकर के जाया, ये देखिए, देखो भास्कर, याद नहीं होगा तुम लोगों को, इस दिन पकड़े थे इन लोगों को। पहली बार जब आए थे तो हम यहाँ आकर के लोकेट किए कि भाई अच्छा बच्चा कौन कौन है, तो हमने लोकेट किया। मेरा फेसबुक पोस्ट देखिएगा, मैंने पहले लिखा कि 2 बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, तो पुराना मिला लीजिएगा इसी फोटो के साथ। इसके बाद लगातार फिर 12th वाले में भी करेंगे इस बार। हाँ, ये संख्या बढ़नी चाहिए। अब एक चीज देखो, पहली तारीफ बता दें, दोनों न मुझे पहचान रहा है न मालूम है क्या, दो कितना सीरियसली सुन रहा है। पहली चीज है अच्छे कान होने चाहिए, ये लोग ओबीडियंट रहे, ये सबसे बड़ी बात है। वो और बड़ी प्यारी तस्वीर मुझे लगती है, बाद में मुझे मिला तो और भी फिगर सिखा, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये एसोसिएशन हम लोग का लंबा है, और मैं मंच संचालक महोदय का आभार करता हूँ। बड़ा उचित शब्दों में मुझे श्रेय दिया गया। कभी कभी मुझे बहुत श्रेय दे दिया जाता है जिसका मैं योग्य नहीं हूँ, कभी कभी मेरा नाम ही नहीं लिया जाता। वही आज वन ऑफ द आर्किटेक्ट, ये जो सफलता है इसकी पहला श्रेय जो है, जो बच्चे यहाँ हैं, इस विद्यालय के संस्थापक और इसके संचालक, प्रिंसिपल सर, टीचर्स सभी लोगों का है। वहाँ से ये बात शुरू होती है। फिर विद्या विहार करियर प्लस आता है, फिर इनकी मेहनत तो है। ठीक है, मैं पहले तारीफ कर हैंड्स फ्री नहीं देंगे जरा। भास्कर ने, ये सभी जेई एडवांस क्वालिफायर है, 3 बच्चे इंजीनियरिंग कैटेगरी से हैं और एक मेडिकल से है। भास्कर ने जेई एडवांस, जेई मेन में भी 99 परसेंटाइल आया। अभी मुझे बता रहा था कि पूर्णिया में होर्डिंग दिखा, कई लोग फर्जी रिजल्ट है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, और ये अपना ओरिजिनल रिजल्ट है जो यहीं का बच्चा 10th से निकला, 11th में आया और यहाँ 2 साल रह करके पढ़ाई किया। 99 परसेंटाइल इनको आया जेई मेन में। और हम चाहेंगे जब इनसे जब बात करेंगे, इनसे टिप्स ये लेना है कि इनका रिकॉर्ड कैसे तोड़ा जाए। हाँ, कि अगले बार इनका रिकॉर्ड तोड़ा, हमको दे दिया। हाँ, एक को दे दिया। और इसके बाद अभी हम लोग जो स्कूल के तरफ से जोसा का एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग और रैंक काउंसलिंग, जनाब को IIT पटना मिला है, पर जनाब खुश नहीं है। इनका अपना सोच है और जो रोके जाने लायक नहीं है। ही इज गोइंग टू IIIT बैंगलोर। और मैंने इसे पूछा क्यों जाना चाहते हो, बोला सर आप देखे नहीं अखबार क्या,
1,45,00,000 का हाईएस्ट पैकेज किया है। क्या बात है, ये बोला नहीं है, थोड़ा कहानी बनाना पड़ता है, बना दे। ये पहले से ही इसके दिमाग में था कि जाना पटना घर है, सोचता है कि बाबूजी भाई फिर पहुंच जाएंगे कैंपस में। ठीक है, फिर हमारे भाई और हैं भास्कर राघव भी कंटिन्यूअस रेगुलर स्टूडेंट रहे और ये सभी लोग बीबीसीपी के टेस्ट में रेगुलरली परफॉर्म किए, स्कूल में भी। ये भी जेईई मेन क्वालिफाई किए, पूर्णिया के टॉप 5 रैंकर्स में रहे, एडवांस क्वालिफायर भी रहे। इन्होंने एक और परीक्षा क्वालिफाई की जो पूर्णिया में पहला था, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके माध्यम से IIT BHU, IIT खड़गपुर और IIT रुड़की में आपको BARC मिलता है। जोसा काउंसलिंग में इनको अभी NIT पटना मिला हुआ है, जिसमें अभी बने रहेंगे, हमको आगे भी अपग्रेड हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने एक और परीक्षा दी, BITS-SAT की, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एडमिशन टेस्ट है, इन्होंने दिया। और वहाँ पे 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, एक वहाँ जो 4 ईयर कोर्स प्रोग्राम जो है वहाँ पे BE का प्रोग्राम है, और एक प्रोग्राम होता है जिसमें 2 साल इंडिया में और 2 साल विदेश में। हमारे राघव बाबू विदेश यात्रा करेंगे 2 साल बाद, अब इनका पूरा मन है, बाकी जोसा काउंसलिंग भी देखेंगे, आगे आएगा। पर 99% मन बना लिए हैं। BITS पिलानी इज नंबर 1 इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, गो डाउन विद द NIRF रैंकिंग। NIRF रैंकिंग ठीक है पर मैनिपुलेटेड है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। कभी भी VIT किसी भी IIT से ऊपर नहीं हो सकता है, पर उसकी भी अपनी खासियत से बात करेंगे। BITS पिलानी, तो आपके स्कूल का बच्चा इंडिया के नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो चुका है। एक बार फिर इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। अब आते हैं ठाकुर अभय टॉप रैंकर्स थे, ये 11th में BBCP में ज्वाइन किए और बहुत ही कंटिन्यूसली टॉप परफॉर्मर्स रहे। सभी लोग में कड़ी प्रतिस्पर्धा चलती रही और ये बच्चे अच्छा किए। इनको अभी NIT सिलचर मिला है। और अभी भी देखो, अभी बात हो रही थी, आने के पहले इसको डांटना पड़ा है। मम्मी पापा को बोल के रखा है कि एक बार और तैयारी करेंगे, IIT जाएंगे। ठीक है, ये जज्बा अच्छा है, पर मैं एक बात बोलता हूँ और मेरा दावा है कि मेरा ओरिजिनल कोटेशन है, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पे हमको टोक देगा। अभय के लिए है, मैं सब जगह बोलता हूँ, और जो आप लोगों को एग्जाम्पल बताए, IIT के साथ भी, IIT के बाद भी। मेरा ओरिजिनल लग रहा है, कहीं से कॉपी किया हुआ लग रहा है ना, LIC वाला है। हाँ, जिंदगी के साथ भी, पर ही हैज टू टेक द कॉल। पर बहुत अच्छे हैं। आप ये समझिएगा, अचीवमेंट के बाद भी एक अचीवर बच्चा पूर्णतः संतुष्ट नहीं होता है, आगे अच्छा करता है। हमारे साथ नीट अचीवर अंशु हैं, ये लगातार मेहनत की और ये वेस्ट बंगाल से आए हैं। आपके पूर्णिया में 10th में अलग अलग स्टेट के बच्चे भी आ रहे हैं, बिहार से, झारखंड से भी बच्चे आ रहे हैं, और यहाँ भी BBCP में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नीट में किया है। अब मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगा और इन लोगों से सवाल जवाब करूँगा। आप लोग बड़ी शांति से बैठे हैं, एक बार फिर से थोड़ा सीधा होकर बैठ जाइए। देखिए, हाँ, थोड़ा सा, ठीक है ना, चाय पानी सब आएगा कैंटीन से, अभी रुक जाइए, ठीक है। और 11th-12th की यात्रा आपने BBCP से की, तो आपकी जो यात्रा रही, जो सक्सेस किए, 99% लाए आप, IIT में आपका हुआ, IIT भी ऑप्शन है, अन्य भी जगह आपका होता है। तो आप अपना अनुभव ईमानदारी से शेयर करें। ऐसा करें कि हमारे बच्चे, हम लोग की एक ही तमन्ना है कि अपना पूर्णिया बिहार में बेस्ट रैंक इस कैंपस से जाए, और कैसे आप लोग उसमें मदद करेंगे इन बच्चों को बताइए। और बच्चों, आपका सवाल भी लेंगे लास्ट में। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सर ने जैसा कहा कि लोग सोचते हैं कि यहाँ पर रहोगे तो फिर दिक्कत होने वाला है, बाहर जाना पड़ेगा, स्टीरियोटाइप की कोचिंग ही जाना है। तो हमको लगता है कि एक्चुअल में सिचुएशन इसका अपोजिट है। बाहर जाके लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बाहर जाके इतना फ्रीडम मिलता है, अचानक से 10th के बाद तो लोग इधर उधर भटकने लगते हैं। तो मेरा कहना है कि पढ़ने वाला कहीं भी से भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोग को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। तो हम मेरा अपना जर्नी बताते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लास 4 से ही हैं, 4 से लेके 12th तक। तो 4 से 10 तक तो फिर नॉर्मली था, जैसे कोई दिक्कत नहीं था, अच्छा स्कूल है। लेकिन फिर 11th-12th में आकर हो जाता है कि कोचिंग जाना है, एलन कोटा एंड ऑल, ऐसे वैसे।
तो ऐसा कुछ है नहीं। तो 11th-12th में मेरा ऐसा रहा कि अच्छा ही चल रहा था सारा, हम खुद से ही पढ़ते थे, क्लास होता था, कुछ टीचर्स पढ़ाते थे, जाकर खुद से पढ़ते थे, जो भी होता था वो सब बढ़िया रहा, अच्छे से सब कुछ हुआ, टीचर्स लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाए और टेस्ट्स एंड ऑल दिए हम लोग स्कूल में बहुत ही अच्छे से। तो बेसिकली बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मेरा एक्सपीरियंस रहा। टीचर्स लोग, हमें पर्सनल अटेंशन मिलता था, टीचर्स कुछ भी डाउट हो तो हम लोग जाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि बाहर ऐसा होता है तुम लोग जाओगे हैंड्स रेज करोगे तो टीचर्स देखने वाले भी नहीं है तुम लोग की तरफ, क्योंकि वो लोग, हाँ ऐसे ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही सही रहा, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे, उनसे बात कर लेते थे। मैं बताऊं, प्रॉब्लम तो भास्कर टीचर को देता था, टीचर क्या देंगे दिन भर टीचर के पीछे पड़े रहता था, इसकी खासियत है यहाँ। हाँ, तो फिर मैं एक बात पूछूंगा कि तुम विद्या विहार में रहे, कुछ अच्छा ऐसा बताओ कि 4 to 10 में तुम्हारा क्या अनुभव रहा। 11 में एक अच्छा अनुभव मैं भी जानना चाहता हूँ, क्वेश्चन इनको कुछ नहीं मालूम है, मैं भी पढ़ा यहाँ का, जो क्या तुमको खासियत लगी विद्या विहार की, मैं भी जानना चाहता हूँ। सर जैसे हॉस्टल में होता है, हॉस्टल में हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं स्कूल्स के अलावा, कि कैसे रहना है, बाकी लोगों के साथ घुल मिल के रहना है। तो यहाँ पर जैसे बहुत ही लोग रहते हैं तो वो हम लोग करना सीखें। हाँ, और यहाँ का जो सेल्फ स्टडी का जो कल्चर है वो भी बहुत ही अच्छा है, सब लोग मिलजुल के पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट यहाँ पे पढ़ने का बहुत ही बढ़िया है सेल्फ स्टडी के समय। ओके, थैंक यू, एक बार ताली बजा दीजिए। आसीन अतिथि हैं हमारे विद्यार्थी राघव ने धीरे से कहा कि सर हम बैठ के ही बोलेंगे क्या, हम क्या बोल लो भाई। फिर बोला सर भास्कर को बैठा दीजिए, हम अगले क्वेश्चन में बैठा लेंगे, ठीक है। राघव से वही सवाल है कि क्या आपका अनुभव रहा है, आपके पास सुविधा थी, 10th के पास आप भी बाहर जा सकते थे, हमें पूरा पता लगा है कि आप लोग शिक्षा से टीके थे यहाँ पे, क्या आपको अच्छा लगा, कैसे आपकी यात्रा रही इस स्कूल से लेकर के कोचिंग के सहयोग से। और सर ने बड़ी अच्छी जो बात की, मेरे पॉइंट में आई सर, सेल्फ स्टडी का क्या रहा इसके बारे में बताएं। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो हम लोग का प्लान फिटजी जाने का था बाहर। अरे वाह, खुलासा हो गया है, ठीक है। सब लोग साथ में जा रहे थे, फिर फाइनली हम और भास्कर डिसाइड किए कि हम लोग रुक जाते हैं, तो हम लोग यहीं पे रुके। और मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा डाउट भी था कि होगा कि नहीं, पता नहीं सही रहेगा कि नहीं, यहाँ रुक के। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हम लोग टीचर्स को देखे, मैथ्स में राजन सर थे, फिर संजीव सर थे, फिजिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में स्टार्टिंग में एक सर थे जितेंद्र सर, फिर बाद में AKYP सर आए। ये लोग का जो सब्जेक्ट का नॉलेज था बहुत ही इन डेप्थ था, और सर लोग, मतलब हम लोग जो भी डाउट पूछते थे सर लोग आसानी से क्लियर कर देते थे। कभी कभी लगता था भाई इतना टफ क्वेश्चन सर से बन कैसे रहा है। तो फिर और हम लोग का रिलेशन भी सर लोग के साथ बहुत बढ़िया रहा, व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड थे, डाउट व्हाट्सएप पे भेजते थे। हम लोग के इनफैक्ट बिल्डिंग के जस्ट ऊपर मैथ्स वाले सर थे, दूसरे बिल्डिंग में केमिस्ट्री वाले सर थे, AKYP सर बाहर से आते थे, लेकिन फिर भी उनसे अच्छा कनेक्शन था हम लोग का। तो सर लोग के साथ रिलेशन बहुत अच्छा था, इसी कारण मतलब फ्रैंक थे हम लोग सर से, और बहुत डाउट पूछते थे, डाउट क्लास होता था उसमें भी सब कुछ सही था। मैं बताऊं कि जब मैं पहली जो सिलेक्शन था, मुझे 1 महीना समझने में रहा, मैं बोकारो में रहा, रांची रहा, यहाँ कोचिंग का अच्छा प्रयास था। मेरे लिए बड़ी चुनौती थी कि जो डाउट क्लियरिंग क्या हो पाएगा यहाँ। इन लोग से पूछता था ना, तीनों से, फिजिक्स सर बहुत बढ़िया, केमिस्ट्री बढ़िया, मैथ, थोड़ा डर मुझे लगता था। और मैं एक बात यहाँ सेक्रेटरी सर के बारे में कहना चाहूँगा, सर यहाँ है नहीं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। पिछले 2 वर्षों में मुझे कभी उन्होंने नहीं कहा कि सर राघव के लिए कुछ कीजिए, राघव क्या कर रहा है, और राघव अच्छा खराब सब करते रहे बीच में, हाँ एक ही बार नहीं है, बीच बीच में। तो पेरेंट का वो पेशेंस और बिलीफ अपने बच्चों पे, इनके पास एक ही था। हम लोग बात करते थे, हम कहे देखो राघव तुमको एक ही प्रॉब्लम है कि सर प्रेशर नहीं दे रहे हैं, हमको भी कुछ नहीं कहते, यही मेरा प्रेशर है कि सर कुछ नहीं कह रहे हैं और तुम लोग को आगे बढ़ना है। थैंक यू राघव, जोरदार ताली बजा दीजिए। अगले रही क्या क्या आपको सपोर्ट मिला, क्या क्या आपको अच्छा रहा, पढ़ने में सुविधा रही, उसके बारे में अपना अनुभव बताएं। गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली 10th के बाद
हम सोचे थे कि हमको कोटा जाना है, पर हेल्थ इशू के कारण नहीं जा पाए थे, तो इसीलिए अब यहाँ पे ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में थोड़ा था कि यहाँ पे रहते हुए IIT JEE जो इतना बड़ा एग्ज़ाम है उसके लिए कैसे प्रिपेयर होगा, पर बाद में जब धीरे धीरे क्लास किए तो बाद में टीचर जो मिले वो बहुत सपोर्टिव थे, फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे थे और टीचर्स का सही में सपोर्ट हमको सबसे ज़्यादा मिला है। राजन सर थे, पटनायक सर भी थे, और ये फिजिक्स में भी सर सब प्रवीण सर थे, अमित सर थे, वो लोग बहुत हेल्प किए। ये सब लोग अच्छे से कैसे पढ़ते वो भी समझाए हम लोग को, क्लास में कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब इनकी वजह से समझ में आया। तो एट द लास्ट मेरा जो जितना भी हुआ सिर्फ कोचिंग के हेल्प से और टीचर्स के हेल्प से हो पाया, जितना हमको लगता है। सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बट टीचर्स अगर अच्छे मिल गए तो मेरा ये था। थैंक यू। अबे टीचर जा रहे हैं, थोड़ा ताली बजा दीजिए। और मैंने इन लोगों से IIT हैदराबाद में एक नियम है कि वहाँ जो बच्चे लेते हैं ना, वो लोग एक बच्चे को एलुमनाई उनका अडॉप्ट करता है 1 से 4 को, और कोई बच्चा IIT हैदराबाद के कोई भी देश में होंगे, मनी इज़ नॉट एन इशू, आप एलुमनाई को अपील कीजिए। उसी से सिमिलर कल्चर हम शुरू करना चाह रहे हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं यहाँ से पढ़ के निकले, आप लोगों को मदद करें कि टीचर्स का पुल हम लोग को बड़ा मिला रहे। अब आगे हम बात करते हैं अंशु से। ये आप 10th कहाँ से किया था आपने? मैंने 10th दार्जिलिंग से करा है, ICSE बोर्ड है वो। ये मोदी जी का जैसे मेड इन इंडिया है ना, यहाँ पे चल रहा है मेड इन पूर्णिया, बाहर से लोग आ गए मेड इन पूर्णिया। हाँ जी बताएं। तो क्लास 2 से मैंने ज्वाइन किया था दार्जिलिंग के जो उसके अंदर स्टेट है डिस्ट्रिक्ट कौशल में, तो वहाँ मैंने 10th किया ICSE बोर्ड से। देन आफ्टर दैट मैंने 11-12 इधर से किया एज अ डमी स्कूल, नॉन अटेंडिंग वाला, IPS से, इंडियन पब्लिक स्कूल से। तो और 2 साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए आई वेंट टू आकाश पटना। उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैंने 12th के साथ निकाला, एज ऑफ दोज कि जिन्होंने 12th के साथ किया है क्रैक, मेरा ये ड्रॉप ईयर था, और एज अ फर्स्ट ईयर नहीं, सेकेंड ड्रॉप ईयर था। तो मेरे लिए तो ये और है कि हम 12th के साथ नहीं निकाले, क्योंकि 12th में आई डोंट नो, मैं मतलब पढ़ती थी लेकिन आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ ये ऐसा। फिर उसके बाद फर्स्ट ड्रॉप ईयर था, तो घर से मैंने प्रिपरेशन करा था, तो उसमें 550 आया था। सो आई थॉट कि एक और चांस दे सकते हैं इसको। तो अभी इस साल मैंने फिर घर पे ही प्रिपरेशन किया था। लास्ट के जब 5-6 मंथ से तब आई ज्वाइन इन टू दिस करियर प्लस। सो थैंक यू वेरी मच। ये जो बता रही इनका आंसर मैं करना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात इसने कही कि मैं फर्स्ट ईयर क्यों नहीं की। यहाँ जो डॉक्टर लोग 12th वाले हों, कान खोल के सुन लो, 11th-12th में जो स्कूल का करिकुलम PCB का है, अक्षर सा पालन कर दो, आपको मिनिमम मार्क्स 350 to 450 आ जाएंगे। बस आपको, मैं फिर कोचिंग के प्लस माइनस कुछ नहीं बोल रहा हूँ, यू टेक सपोर्ट, पर बेसिक करिकुलम को पढ़ना है और कोचिंग का सपोर्ट लेते हैं तो बहुत आसानी से 450 से 550 का। अब मैं शुरू करते हैं। सेल्फ स्टडी का रोल है या टीचर चाहिए एकदम झकास, कि टीचर बहुत अच्छा मिल जाएगा, बिना सेल्फ स्टडी के काम हो जाएगा, क्या कहना है? सर 10th के बाद 11th-12th में जो हम लोग आते हैं तो मेन हम लोग का सेल्फ स्टडी ही इंपॉर्टेंट होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि 10th तक का जैसा पढ़ाई होता है और 11th-12th का जैसा पढ़ाई होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है मैं बता दूं। मैं 2005 में FIITJEE ज्वाइन किया था, तो पहली बार आटा चावल का भाव मालूम चला था कितना मुश्किल पड़ता है। तो एक बच्चे से मैंने पूछा भाई क्या दिक्कत है, जो IIT किया था। बोले सर 10th 11th के डिफरेंस से समझिएगा, समंदर सा सिलेबस है, समंदर सा सिलेबस है, बाल्टी भर पढ़ते हैं। समंदर सा सिलेबस है, बाल्टी भर पढ़ते हैं, जग भर याद रहता है, ग्लास भर लिखते हैं और नंबर आता है चुल्लू भर, जिसमें डूबकर मर भी नहीं सकते। ये 11th की कठिनाई है। इसीलिए जो हमारे सूरवीर 10th में ताज ठोके हुए हो ना, खूब अच्छा कर रहे हो, जिनको टॉप करना है, देखो इनके रिकॉर्ड को तो बीट करना है हम लोग को, इन्हीं की मदद से करना है। हाँ, तो आप लोग 10th वाले जो 9th में कुछ प्रयास चल रहा है, आगे बढ़ेंगे। आपको कोई भास्कर से एनी क्वेश्चन फ्रॉम भास्कर, एनीबॉडी? यस प्लीज, यस सर प्लीज। देखिए आप आपका बेटा है ना? हाँ ठीक है, अच्छा ठीक। स्टडी करना चाहिए या कोचिंग पर विशेष फोकस करना चाहिए? अच्छा पापा पे एक बात बता दे, आमिर खान का पिक्चर देखे हो?
जो हानिकारक बापू है ना, उसी का रिजल्ट होगा। तो पहले तो हानिकारक बापू ही बनना पड़ेगा। हाँ भाई, ज़्यादा होता है 11th का, तो आप लोग उसमें टाइम मैनेज कैसे करते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक चीज समझो, सच ए वंडरफुल क्वेश्चन। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, और इससे टफ क्वेश्चन इसके लिए नहीं है। वाह, पढ़ रहे हो तुम। पढ़ने वाला ऐसे ही सामान्य क्वेश्चन में गुगली मारता है। आंसर करो। देखो, बात यह है कि 2 साल जेई के लिए सफिशिएंट है ही नहीं, लेकिन अगर टाइम के क्राइसिस में तुम जितना अच्छा कर सकते हो वो किया जा सकता है टाइम मैनेज करके, जो तुम जानना चाह रहे हो। तो देखो, टाइम मैनेज करना है तो तुम स्ट्रैटेजिकली पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। जैसे कि तुम क्लास करके आए, क्लास करके तुम रेस्ट किए, लंच किए, जो भी किए, उसके बाद तुम पढ़ने बैठे, तो तुम क्या पढ़ने बैठ रहे हो? जैसे कि तुम पढ़ रहे हो, उसका कुछ वैल्यू निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है? नहीं तो एक तरह से वो वेस्ट ऑफ टाइम ही हुआ, अगर तुम्हें टाइम मैनेज करना है तो तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई में। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है पढ़ाई में तो तुमको इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ दिखेगा ही नहीं। हाँ, तो बेसिकली तुमको पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना होगा। अगर तुम पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हो तो तुम ज़्यादा टाइम और फोकस दे पाओगे अपने सब्जेक्ट्स पर। तो अब तुम बाकी सब चीज़ पे टाइम को कम करो और पढ़ाई पर टाइम दो। और अब किस तरीके से पढ़ना है वो तो एक अलग ही सवाल हो गया। थैंक यू, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड आंसर। अब देखो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का है। देखो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ असली बात। मैं सरस्वती शिशु मंदिर में 5th तक पढ़ा। हम लोगों ने प्रार्थना सीखी थी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद जब नया जमाना आया और जो लोग आईटी नहीं जाता उसका फॉर्मूला बता रहे, ये आईटी का फॉर्मूला बता रहे हैं, अब मैं बताता हूँ नहीं जाने वाला फॉर्मूला। क्या इसकी बातों में आ रहे हो? वो फॉर्मूला क्या है? काग्रे वस्ते व्हाट्सएपम। हाँ, तो कैसा बात बोल रहा है? घर के अग्रभाग में व्हाट्सएप, काग्रे वस्ते व्हाट्सएपम, कर मध्य इंस्टाग्रामम, कर मूले तु फेसबुकम, प्रभाते कर दर्शनम। इसमें समझेंगे, मैं एज ए काउंसलर, एज ए गार्जियन ये कह पाने की स्थिति में नहीं रहता हूँ कि मत करो। एक मेरा सुझाव है, और लड़की लोग 90% मान लेती है, लड़का लोग 10% मानता है। और कहता हूँ मैं हर जगह मंच पे, एक रिक्वेस्ट है खास करके 11th-12th वालों से और 10th वालों से भी। यहाँ तो चूंकि बहुत बंदिशें हैं, उसकी मॉनिटरिंग है, काफ़ी चीज़ें। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, तो डिजिटल फास्टिंग करो। पढ़ाई करने के समय जो भास्कर के बाहर में है, मोबाइल छोड़ दीजिए, बस इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। उसके बाद इनकी बात मान लेंगे। आपको जो इसने जो कहा, बहुत गुण बात इसने भी कहा, तो टॉपर और एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये कहना है कि टाइम तो आपके पास है, पर आप लगा कहाँ रहे हो? आप लगा रहे हो जिसमें, उसी में आपका टाइम बचेगा। ये गंभीर सुझाव है। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल, छोटे बच्चे, हाँ आ जाओगे तुम। वाह, इसके डेली रूटीन बता रहे। आई देखो, ये पूरा खुलासा कर देगा। डेली रूटीन, देखो ये भी बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। मैं जब आता था तो शुरू में हर बच्चे के सर कोचिंग स्कूल कैसा है, बहुत अच्छा है, सब चीज ठीक है, पढ़ने में टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये समस्या लेके हम गए, सर लोग बातचीत किए। सर ने कहा, सर पढ़ने वाला इसमें पढ़ता है, आप देखिएगा करके निकलेगा, और नहीं करने वाला नहीं करेगा। एनी अदर क्वेश्चन? जैसे सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, उसके मतलब एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं। एक है, ये तो छुप छुप के पढ़ता था, बताता नहीं है। हाँ, एक दूसरा क्या बनना चाहते हो बेटा? डॉक्टर। डॉक्टर, चेहरा था डॉक्टर वाला। ठीक है, थैंक यू। भास्कर प्लीज आंसर। ओके, तो मेरा रूटीन सही तो नहीं था, बट जो था मैं बताता हूँ। तो जब मेरा क्लास चलता था तो सुबह उठते थे 7:30 बजे, क्लास शुरू होने से आधा घंटा पहले। उसके बाद फ्रेशन अप होते थे, ब्रश वश करते थे, बैग अरेंज करते थे, उसके बाद क्लास जाते थे। और क्लास में हम लोग का रेगुलर क्लासेस चलता था, पढ़ते थे। उसके बाद हम लोग अपने क्वार्टर आ जाते थे। हाँ, तो फिर क्वार्टर में लंच करते थे, फिर लंच करके आधा घंटा 1 घंटा का हम लोग नैप लेते थे। फिर नैप लेके जब उठते थे तो हम लोग जो क्लास में पढ़े थे एक बार उसको रिवाइज करते थे, जो भी सर ने पढ़ाया, जिस भी क्वेश्चंस को कराए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उस पर टाइम दिए कि नेक्स्ट डे वो पूछना है या जो भी करना है। उसके बाद तुम लोग जो भी बुक्स फॉलो कर रहे हो, उस बुक्स से क्वेश्चंस बनाने हैं, जो भी चैप्टर क्लास में कराया गया
उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। जो डाउट रह गया उसको टिक कर लेते थे अगले दिन पूछने के लिए। तो ऐसे करते करते शाम हो जाता था, फिर शाम को उठते थे थोड़ा रिफ़्रेशमेंट के लिए, हॉस्टल आके दोस्तों के साथ थोड़ा देर आधा घंटा घूम लेते थे। उसके बाद फिर लौट के स्नैक्स करते थे, फ्रेशन अप होते थे, उसके बाद वापस से पढ़ने के लिए बैठ जाते थे सेल्फ स्टडी। तो उसमें भी सेम ही फ्लो रहता था, जो भी बुक्स फॉलो कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, जो नहीं हुआ टिक कर लेते थे। फिर डिनर करते थे, डिनर करते करते बातचीत थोड़ा मोड़ा कर लेते थे, फिर से उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाते थे। और एक्चुअली मेरा था कि हम रात को जग के पढ़ते थे और दिन में थोड़ा सोते थे। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट मेरा था तो हम बता रहे। तो रात को 1 से 2 बज जाता था, 2 बजे सोने जाते थे और फिर सुबह 6 बजे उठते थे। थैंक यू। यहाँ 2 बात ऐड करेंगे। ये जो रूटीन है 2 बात समझिएगा, इसने शुरू में क्लैरिफाई किया, हर बच्चे का अपना रूटीन होता है। 2, जो स्कूल जिस सिस्टम में आप रह रहे हैं उसको फॉलो करेंगे। 2018 में राहुल सिन्हा झारखंड टॉपर थे, यही सवाल एक बच्चे ने कहा था कि भैया रूटीन क्या होना चाहिए। उसने एक आंसर दिया था, रूटीन 2 होता है। एक, जब सिलेबस तुम्हारा चल रहा होता है तो रूटीन अलग होगा, और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मुकुंद ने कहा, जब कंप्लीट होता है, सिलेबस बहुत वास्ट है, उसके बाद रूटीन अलग होती है। दोनों रूटीन अलग अलग है। फिर यहाँ एक चीज और ऐड करें, ये लोग राघव भी लगातार बाकी लोग देर तक सोते थे। जेई मेन के परीक्षा के पहले हम लोग को मेहनत ये करना पड़ा कि लोग जल्दी सोना शुरू करें, क्योंकि एग्जाम के पहले बॉडी क्लॉक, कई बार आपको स्कूल में कहा जाता है सुबह उठो, लगता है इनको कोई काम नहीं है स्कूल को, उठो बैठो इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन ये जो बॉडी क्लॉक है ना, एक कार्केडियन रिदम जो सेटल करता है वो आपको सक्सेस करता है। बॉडी क्लॉक पे ही बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आई विल टेक एनी फ्रॉम दिस साइड, इधर से हाथ आ बेटा, आगे आ जाओ तुम। विच क्लास? डिस्टेंस कैसे मेंटेन किया? ब्रिलियंट क्वेश्चन। सोशल मीडिया से बहुत अच्छा सवाल है। अभी ना गांधी जी आते थे, 2 बंदर को और में करके आते है ना, कि व्हाट्सएप मत देखो, इंस्टा। प्लीज आंसर। तो देखो, सोशल मीडिया तो हम खुद यूज़ किए हैं बहुत समय तक, 1 साल तक तो एटलीस्ट हम भी यूज़ किए ही हैं। बट धीरे धीरे जब हमको पता चला कि मेरे पास कितना टाइम है, हमको कहाँ टाइम देना चाहिए, तुमको खुद से समझना पड़ेगा कि तुम्हारे पास अभी कितना टाइम है, तुमको वो यूज़ करना चाहिए या नहीं। और धीरे धीरे उससे डिस्टेंस तुम्हें बनाना पड़ेगा कि तुम जैसे पढ़ रही हो और तुम एक टारगेट सेट करो कि तुमको इतना देर पढ़ना है, और इतना देर पढ़ के थोड़ा देर के लिए तुम रिफ्रेशमेंट के लिए सोशल मीडिया खोल रही हो, और उस टाइम को धीरे धीरे घटाते चलना है। ऐसा कर। बहुत अच्छा आंसर, थैंक यू वेरी मच। एक जोरदार ताली बजाइए। इस बेचारे को नहीं मालूम था कैसे फंसाने वाले हैं, क्योंकि आंसर स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। प्लीज टेक योर सीट। राघव जी आइए। जब नंबर कम आता था उस समय कैसी फीलिंग होती थी? टेस्ट तो बड़ा बेरहमी से लिया जाता था बीबीसीपी में, दाएं 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 टेस्ट हो रहा है, कभी टॉप आ रहा है। यहाँ एक और देखिए झंझट विद्या विहार में, बीबीसीपी में कभी कभी इनका फोटो भी टंगता था, भास्कर का भी टंगता था, कभी कभी फोटो गायब हो जाता था। ये मैं चाहता हूँ कि बच्चों को एक्सप्लेन करो कि अप्स एंड डाउन जो आते हैं, तुम्हारे में भी आए परफॉर्मेंस के, कभी कभी परफॉर्मेंस काफ़ी लो गया, कभी कभी अच्छा पानी दे दिएगा, पानी पी लिए, ठीक है। ये बेटा समझना कि हर बच्चे के जो टॉपर जो भी होते हैं, जो अचीवर्स होते हैं, हर का लोज एंड अप्स आता है। हर टेस्ट में ऐसा नहीं कि भास्कर ने परफॉर्म किया, हर टेस्ट में उन्होंने किया, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, हाउ डिड यू हैंडल योरसेल्फ, वो क्या उसको बताएं। सबसे पहले तो हम लोग का फाइनल एग्ज़ाम नहीं होता था, वो एक टेस्ट है तो उसको इसी तरह लिया जाता था, और उसमें यहाँ पे ना सिलेबस बहुत ज़्यादा था टेस्ट में, तो ये हमको पता था कि इतना एक ही बार में आ गया है, रिवीजन अच्छे से हुआ नहीं है, बाद में कर लेंगे, वही था सीन। अच्छा ये बताओ, जो क्वेश्चन रूटीन का था, तुम्हारा क्या रूटीन था, इसका खुलासा फिक्स तो नहीं था, रेगुलर क्या था, बच्चे जानना चाहते हैं। रूटीन था, साथ ही एक ही साथ था। ओके, तुम जो 12th वाले बच्चे हैं उनको कैसे सलाह दोगे, हाउ टू बैलेंस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तीनों विषय है, एक पढ़ने से काम चलेगा पक्का? जैसे केमिस्ट्री में खूब मन लग रहा है, फिजिक्स में खूब मन लग रहा है, इसका कोई उपाय है? कोई उपाय कैसे बैलेंस करना चाहिए, ये 12th वालों को बताओ। 12th वाले बच्चे हाथ उठाओ जरा, जिसको मैं देख रहा हूँ, कहाँ है? हाँ ठीक है, हाथ नीचे, ठीक है, 12th वालों से मिला हुआ हूँ। हाँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को तुम लोग ऐसे मैनेज कर सकते हो, जैसे मान लो
3:2 का रेशियो रखना चाहिए। फिजिक्स और मैथ्स को सेम टाइम दो, केमिस्ट्री को थोड़ा कम भी दे सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री को अभी नेग्लेक्ट मत करना अपने जेई जर्नी में। फिर से रिपीट करो। केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट मत करना चाहिए। बहुत अच्छा बात आया है। इस देश में सर तुम केमिस्ट्री के हैं तो मैं बड़ा मेरे लिए बड़ा क्रिकेट विषय रहता है। केमिस्ट्री में क्या होता है कि मैं जब फिजी में गया तो हमने सुना कि केमिस्ट्री इज वेरी इजी। 20 साल हुए अभी तब मुझे समझ में आया केमिस्ट्री इज इजी टू स्कोर बट नॉट इजी टू स्टडी। यही भ्रम मैं कह रहा हूं एज ए काउंसलर, हमने लगभग 10 साल इस बात को बोला, चूंकि बड़े बड़े विद्वान लोगों ने कहा। जब एक बच्चे का मैंने एज ए गार्जियन मॉनिटरिंग किया और देखा कि भाई यहाँ केमिस्ट्री के बारे में बता दें, जो 11th में बच्चे हैं, थोड़ी सी चूक 11th में होगी, 12th में दिक्कत हो जाएगी। केमिस्ट्री इज इजी टू स्कोर बट नॉट इजी टू गेट मार्क टू स्टडी। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और केमिस्ट्री में शेयर करना चाहता हूँ, एक बार एक बच्चे को हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो उस बच्चे से मैंने कहा कैसी तैयारी है? कहा सर फिजिकल बहुत कमांड है, 2 चैप्टर खाली नहीं हुआ है। ठीक है सर, तुरंत समझेंगे, हमको समझने में बहुत समय लगा। कहा सर थर्मोडायनेमिक्स का इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। तो हमको मालूम है कि हम समझदार नहीं है, हम एक टीचर के पास ले गए, बोले तो तुम्हारा हुआ क्या है? इसीलिए पेरेंट्स को भी समझना है, ऑलवेज गेट कनेक्टेड विद द टीचर्स सो दैट जो कह रहे हैं आप बच्चे को फ्रीडम दीजिए पर टीचर से कनेक्ट कीजिए। आखिरी सवाल आगे, ये जो तुम्हारी यात्रा जो 10th तक की रही यहाँ पे इस चीज के लिए, तुमको क्या क्या अच्छा लगा इस स्कूल में? 10th तक का, 11th तो बड़ा अलग हिसाब है ना। तो 10th तक का तो मेरा बेस्ट टाइम था लाइफ का, श्योर, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत सारे दोस्त थे जो स्पोर्ट्स साथ में खेलते थे। अच्छा, पढ़ने वाले को खेलना चाहिए, बिल्कुल, ये ध्यान रखो भाई। हाँ, इतना अच्छा स्कूल, मुझे कभी कभी 11th 12th के बच्चे मेरे सर खेलते नहीं, अरे भाई वही रिक्रेशन। ठीक है, और क्या क्या अच्छा लगा? और हॉस्टल में बहुत मजा आता था स्टार्टिंग के, मतलब अगर हम हाउस मास्टर को भी आता था कि तुम्हें को आता था? हाउस मास्टर से दोस्त की। ठीक है, ओके, हाँ, ओके। एनी क्वेश्चन फ्रॉम राघव? He is going to, he has been selected for NIT, he is shortlisted candidate है IIT BRK और बिट्स पिलानी। प्रशांत सर के साथ एक हमसे वचन ले लिए कि मुकुंद का 11th 12th में यहाँ रखना है। हमने कह दिया है ओके, बिल्कुल फ्रैंकली बताना है, ये मेरा डिसीजन सही है या गलत? बिल्कुल सही है सर, अगर वो पढ़ाई करे, टीचर्स के साथ रहे तो। वो परफॉर्मेंस भी हम देख रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि हम सही जा रहे हैं। जी सर, सही है। थैंक यू, थैंक यू। चाहते हो कि तुम्हारे 11th 12th वाले के कुछ गलतियां ध्यान में हो या कुछ सुझाव हो तुम्हारे लिए तो बताइए। एंड में पैनिक मत करना प्लीज, हम लास्ट में बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए थे। ये बहुत अच्छी बात है, एंड में पैनिक मत करना। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, जैसे ये ना, जैसे एक समझना है कि 10th के बच्चे को 11th का समझाओ तो समझ में आएगा। 10th में जब हम लोग आके बच्चों को बोलते हैं बहुत प्रेशर है, सब लोग बोलते हैं, समझ सकता है नहीं। ये लोग ये एंड में पैनिक क्यों करते हैं ये बताओ, उसकी वजह क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। वेरी गुड पॉइंट, गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू, बहुत अच्छा। ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मेरा। एक्चुअली कभी लास्ट में होता है कि अगर कुछ टॉपिक नहीं हुआ या फिर कुछ चीज़ नहीं हुआ उसको छोड़ दो। मेरा क्या था कि हम थोड़ा कुछ टॉपिक्स नहीं किया था और उसमें भी कोशिश कर रहे थे कि कर ले, वो मेरा एक उसमें टाइम गया और टाइम थोड़ा कम था एडवांस के लिए, इमीडिएटली एडवांस में जो टाइम लगा था कम था और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा और टफ भी था, तो उसमें पैनिक कर रहा था कि क्वेश्चन थोड़ा देर के लिए भी नहीं हुआ तो उसमें डर लग गया, या थोड़ा टाइम देंगे नहीं, उसमें पैनिक हो ही जाता था। सर को माइक दिया जाए। ये जब एडवांस अपना देके आया और निकलते ही बोला सर मेरा नहीं होगा, मैंने कहा बेटा तुमको कैसे पता तुम्हारा नहीं होगा? और मैंने उस दिन ही कहा था तुम्हारा होगा, और जब इसका रिजल्ट आया इसको पता नहीं था इसका रिजल्ट, मैंने इसको बताया। ठीक है, कभी भी पैनिक नहीं करना, तुमको नहीं पता, बाकी बच्चे मतलब सिर्फ तुम्हारा नहीं है ना, ऑल ओवर इंडिया में सेम ही लगभग मेंटल लेवल सब बच्चों का एक ही जैसा होता है। ठीक है ना, चलो थैंक यू सर। अब आखिरी सवाल अंशु से, अगर किसी को वैसे क्वेश्चन हो, हम अंत की ओर बढ़ चुके हैं जहाँ पे फिर बच्चों को कुछ गिफ्ट मिलेगा। यहाँ से अंशु आ जाइए आप। मारिया नाम फ्रॉम क्लास 12 JEE कैरियर प्लस। भैया एक क्वेश्चन था कि अगर
11th का कोई ऐसा पार्ट है जो 12th में भी काम आता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 12th में भी काम आएगा, और वो वीक रह जाए तो उसको कैसे कवर करें, क्योंकि 12th भी आगे है और 11th भी है पीछे। ये बात है कि ऑलमोस्ट 11th का लगभग सारा चीज़ ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तुम लोग 12th में करोगे ऐसा भी नहीं कि हर एक क्वेश्चन सेम रहेगा या फिर उसमें एक ही कॉन्सेप्ट, कुछ उसमें ना पुराना कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाएगा, ये सीधा नहीं है कि यूज़ नहीं होगा, और एट द लास्ट एग्ज़ाम में भी तुम्हारा 11th का आता ही है। अगर ऐसा हो और अगर कुछ नहीं आता तो एक बार के लिए उसको छोड़ो, थोड़ा टाइम अगर फ्री हुआ उसमें तो ट्राई करो उसको करने का, टीचर से पूछो, और फिर उसमें अगर वो तो ठीक है, वरना छोड़ो सीधा, उसको बाद में करने का फायदा नहीं, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा। मेरा स्टार्टिंग में हम फ्लूइड्स हमको पूरा समझ में ही नहीं आया था क्या है क्या नहीं है, और ऑलमोस्ट वेब पोर्शन भी मेरा खराब था। हम 12th के लास्ट में जब पढ़ना वापस से किए तो उसमें हम और समझे और फिर से नोट से बेच के वही हुआ। ठीक है, कैसी तैयारी चल रही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है इस बार? हाँ बिल्कुल, लास्ट ट्रिप तुम्हारा अच्छा था, यू आर गोइंग वेल, है ना, रिकॉर्ड फुल परफॉर्मेंस से उम्मीद है जो सपोर्ट चाहिए स्कूल और कोचिंग सिस्टम आपको देगा। हाँ बेटा, थैंक यू है, खड़े हो जाओगे, लगता है तुम्हारे लिए सवाल है, रुक जाओ है तुम। हाँ मेरा क्वेश्चन आप सभी से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत टीचर्स और बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर तुम 9th में हो तो 10th का पढ़ना ही जरूरी, मतलब 10th का कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है, आधा या आधा से ज़्यादा पूरा, और अभी हम 10th में तो बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 11th का भी पढ़ो, तो क्या ये जरूरी है? अगर हम फ्लो से ही चले तो सही नहीं है? राघव विनय सर, देखो लास्ट के 4-5 महीने तो तुम अपना पूरा फोकस 10th में रख सकते हो, लेकिन जो 10th का इनिशियल फेज होता है उसमें तुम 11th का पढ़ो तो तुम आगे लो। हाँ नहीं वो तो ठीक है, बहुत लोग ये कहते हैं कि 11th का तुम मतलब आधा कंप्लीट कर, आधा कंप्लीट तुमसे होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, किसी से नहीं होगा, किसी से नहीं, तो बोलने वाले को तो समझना। देखो कुछ टॉपिक्स हैं वो कर लो, तुम सही रहेगा आगे। भाई ब्रो, हाँ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। हाँ मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं बाहर में भी हैं जो ठीक है, कुछ बाहर के भैया लोग। सही क्वेश्चन चल रहा है, अभी पढ़ो कुछ क्लास के 4-5 महीने पूरे, जब प्री बोर्ड चालू हो जाएगा या फिर उसके 1 महीने पहले 10th पे पूरा फोकस कर लेना। थैंक यू, तुम भी रहो। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, दीदी वंडरफुल क्वेश्चन। ये तो 9th में जो आपका फिजिक्स में पहला चैप्टर है मोशन, दूसरा चैप्टर है मोशन, ये दो चैप्टर्स हैं, ये 11th में कैरीड हैं। 9th में जो 3rd चैप्टर 4th चैप्टर केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये 11th में कैरीड है। अब समझना क्या होता है, इस देश में कोचिंग ने एक झूठ बेचा, किस कोचिंग में नाम मैं ले रहा हूँ, ये 20-30 साल से है। उन्होंने क्या किया, हर साधारण बच्चे को भी कहा कि तू 9th में 11th तक अपग्रेड हो जाए, और वही इकोसिस्टम चला रहा है। सबको जरूरत नहीं है, 90% को नहीं है। और आपको बता दें कई बच्चे 11th स्टार्ट करके बहुत आसानी से IIT किए हैं और 9th-10th में करने के बावजूद भी नहीं किए हैं। लेकिन अगर आपको करना, समय बदला है 20 वर्षों में, तो 9th में अभी जो आपको फैसिलिटी है, 9th इज द फाउंडेशन ऑफ 11th एंड 10th इज द फाउंडेशन ऑफ 12th। 10th की जो फिजिक्स है उसका रिफ्लेक्शन 12th में है, तो 9th में 10th करना, और हर जगह अलग तरीके से होती है। तो आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस पे किया जाएगा। और आपको बता दें, जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ाई होती है रेगुलरली करेंगे, आपके पास समय मिलेगा, BVCP सिस्टम में 9th-10th कंप्लीटेशन हो जाएगा। पर हर किसी को एक ही लेवल पे जाया नहीं जा सकता है, किसी का छूट भी जाएगा तो 11th से तैयार होगा, और किसी का, जो एक राघव ने कहा ठीक, ये सुनने वाली बातें होती हैं, लोग कह देते हैं, कर दिए, होता किसी का नहीं है, पर इसका ट्रेंड है, अपने हिसाब से इसको तय करना है। तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है बोर्ड की? बम है, क्या लेना है आगे? PCP, ठीक है। यहाँ मैडम मुझे दिखी थी अभी, हाँ ठीक है, बहुत मजा आएगा बालूजी पढ़ने में यहाँ पे, ठीक है, ओके। अरे तुम लोग क्यों खुश हो रहे हो? ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। वन मोर क्वेश्चन, और फिर मैं प्रशांत सर और सर को कहूँगा कि प्रोग्राम को कंक्लूड करें। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ प्लीज आ जाओ, आ गया यहाँ। लेकिन एक भैया
जो उठता है एकदम सैनिक की तरह उठता है, एकदम स्मार्टली, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। यस, ठीक है। गुड इवनिंग सर एंड एवरीवन, माय नेम इज अंकित सिंह, आई एम स्टूडेंट ऑफ बीबीसीपी क्लास 12 जेई। हम बहुत बड़ा जान रहे भैया को, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन भैया। हमको बस इतना जानना है कि 12th का बोर्ड रहता है, अब फिर जेई का भी प्रिपरेशन करना है, दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे, मतलब टाइम लिमिट और फिर कैसे उसको बैलेंस करेंगे? दिस इज अनदर वंडरफुल क्वेश्चन, और इसके बाद अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूँ कि पूरी ईमानदारी से राघव जवाब दे जो इनके मन में है। ओके, ठीक है, यू स्टे हियर, फिर अगला सवाल होगा फिर पूछोगे। तो जैसे तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स होंगे, ठीक है, तो उसमें तुम अच्छे से प्रिपेयर करना, वो एग्ज़ाम अच्छे से देना, तो तुम्हारा उस टाइम ही इंग्लिश और पी जैसा सब्जेक्ट है वो हो जाएगा। और पीसीएम तो तुम ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो, ठीक है, और एनसीईआरटी जेई और नीट दोनों के लिए रिकमेंडेड है, तो पढ़ो ही, तो उससे तुम्हारा बोर्ड भी सही होगा। 10th में आंसर राइटिंग अगर तुमको इंग्लिश में आता था, पी में आता था, तो तुम 12th में भी लिख लोगे। और जो स्कूल का एग्जाम है वो दो, और बाकी अलग से उस पर फोकस करने का जरूरत नहीं है। तुम जेई मेंस की बात कर सकते हो, फर्स्ट वाला जो जेई मेंस होता है वो जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट, हाँ, उसके बाद बोर्ड्स में दे सकते हो, एडवांस में भी थोड़ा पढ़ते रहना है। तो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसको समझना क्या है। पूरे बिहार में, झारखंड में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक दबाव रहता है कि भाई एक्सेल कीजिए, स्कूल छोड़ दीजिए। मेरी बात ध्यान से समझना 12th वालों, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम को पहले कमांड करेंगे उन्हीं के पास नवंबर दिसंबर में होगा। स्कूल सीबीएसई नॉर्म से चलता और चलेगा, बोर्ड प्री बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं। और ध्यान से समझना, अगर जुलाई अगस्त को यूज कर लोगे स्कूल पोर्शन के लिए तो तुमको नवंबर दिसंबर में जेई के लिए टाइम मिलेगा। और बहुत बच्चे यहाँ भी दूसरी जगह भी इसलिए पैनिक करते हैं, 20 जनवरी के आसपास आपकी परीक्षा हो जाएगी, दिसंबर सभी स्कूलों में प्री बोर्ड चलेगा। तो अगर आप पहले से कर लेंगे, आप थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी चीज़ के लिए। और लास्टली, कोई एक रूल नहीं है, हर समय आप प्रिपरेशन के लेवल पे बदलते हैं और अपने सीनियर से बातचीत करते रहें, समझते रहें। थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चन अंकित। सो तुम्हारा लास्ट का नीट में 6 महीने तुम्हारे बचे थे, तुमने कहा कि मैं वीवीसीपी को ज्वाइन किया, तो वीवीसीपी को ही क्यों तुमने चूज किया, ये जरा मुझे हम लोग को बता दो। पहली बात तो लास्ट के 6 महीना जो कि चेंजिंग फेस होता है नीट के एग्ज़ाम के लिए, उस दौरान मैंने करियर प्लस ज्वाइन किया, वही बड़ा बात था मेरे लिए भी। एज एन डाउट था कि इज़ इट मतलब ठीक है या नहीं ज्वाइन करना। हम तो सेल्फ स्टडी कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो कुछ गैप्स बच जा रहे थे उसके लिए फॉर दैट ओनली आई चोज दैट करियर प्लस। और वो बहुत अच्छे से बताया गया, समझाया गया, और सारे टेस्ट के बाद जो एनालिसिस कराना होता है जो कि दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, उसने मैंने करा। प्लस आई टुक हेल्प ऑफ ऑल द टीचर्स जिसने मुझे पढ़ाया है, ऑफ ऑल द फैकल्टीज एंड थैंक यू। ठीक है जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि जैसे सारा बच्चे जो 10+2 की तैयारी करते हैं और साथ में इंजीनियरिंग और नीट का तैयारी करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ में तैयारी करते हैं, अगर फर्स्ट ईयर में उसका नहीं हो पाता है तो दूसरे बार जो ड्रॉप का तैयारी करता है तो उसको आप किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, मतलब उस बच्चे को जो है ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ये बहुत सीधी सी चीज़ है, 12th तक में कितनी तैयारी किया उस पर डिपेंड करता है। आईटी और मेडिकल दोनों का ट्रेंड अलग है। आईआईटी में 80 to 90% रैंकर्स प्रेजेंट ईयर के होते हैं, आपको कहीं भी टॉप 1000 में। मेडिकल में ऐसी बात नहीं है, मेडिकल याद रखना 2+1+1+1 ईयर चल रहा है। और तैयारी का क्या है, 3 विषय में अगर बायोलॉजी वाले एस्पिरेंट 2 साल में बायोलॉजी भी कमांड कर देंगे तभी होगा। और मोटिवेट करने से बड़ा मामला क्या है, असेसमेंट का मामला है। और बच्चों का जो गैप होता है इंजीनियरिंग वालों का, खास करके पीसीबी वालों का, 11th की फिजिक्स गोल रहती है, और 11th की फिजिक्स को करने में, और आपको समय क्या है, अभी जैसे जोशा काउंसलिंग खत्म होगी 16 तारीख को, बच्चे के पास अब साल भर नहीं है इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए, तो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट को बहुत सोच समझ के रुकना चाहिए पास आउट के लिए। और पिछली तैयारी कहाँ तक की है इस पर डिपेंड करता है। एक दूसरी चीज,
एक पेपर में राघव ने सॉल्व किया था, इसको 98 परसेंटाइल है, उतने ही क्वेश्चन में दूसरे शिफ्ट में 99 परसेंटाइल है। जेई मेन हैज बिकम अनसर्टेन, तो जेई मेन के दम पे नहीं करना चाहिए। आपका जो कैंडिडेट है इंजीनियरिंग के लिए मेडिकल की बात है, आप किसके लिए पूछ रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए मेडिकल के लिए? दूसरे साल में आपको बता दें किसी भी इंस्टीट्यूट्स में बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है, पर आपका डिटरमिनेशन, प्रशांत सर गुस्सा मत कीजिएगा, एकदम पास कर देगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी है सर, बच्चे का संकल्प अगर एक विषय भी ठीक से कर लिया 12th में तो नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा करेगा। और एक बात समझिएगा, रुकना में दूसरा पहलू है कि IT जाने के लिए नहीं रुकना है। अगर बच्चा ठीक से नहीं पढ़ा है तो एक साल रुक करके बेसिक्स अच्छा होगा तो और अच्छा करेगा। देन इट इज ए इंडिविजुअल केस। आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय 1-2 लाइन्स। ये मैं कई बार आपके बीच भी अलग अलग रूप में बात किया हूँ। लास्ट में आपको यही कहूँगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पंक्ति है, अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में उसे सुनाऊंगा आपको, जो है आपका वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, गहन सघन मन मोहन वंतरु मुझको आज बुलाते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम दोस्त, गहन सघन मन मोहन वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने तालियां जोड़ दिया। So please, a big hand for Abhay. बाल मंदिर के जो हमारे निदेशक हैं, प्लीज आप भी हमारे लिए उतने ही सम्माननीय हैं, प्लीज स्टेज पे हैं। इन चारों बच्चों ने बड़े ही फ्रैंकली अपने दिल की बातों को रखा। उन्होंने इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इनके अचीवमेंट्स में। बीवीसीपी के फैकल्टीज और एडमिनिस्ट्रेटर्स और ऑफिस बेयर्स, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप सभी का थैंक यू वेरी मच। आप सभी से आग्रह है, रिजल्ट आता है वो बच्चों का नहीं होता है, ये पूरे संस्थान का रिजल्ट होता है। बच्चे मेहनत करते हैं, पूरे एक सिस्टम होता है जो पूरा उसके पीछे लगता है। हमारे बैक ऑफिस की टीम दिन भर हमेशा टेस्ट के पीछे लगे रहे। थैंक यू दीपक, थैंक यू स्वाति, काजल, वर्षा, थैंक यू। मैं नाम भूल जाता हूँ हमेशा मुझे ध्यान, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आप लोग हमारे साथ जुड़े, ये हमारी जर्नी को आपने देखा। अगले साल भी हम लोग इसी तरह करेंगे और रिकॉर्ड हमारा और अच्छा होता रहेगा। ये हम आपसे वादा कर भी रहे हैं और आपसे वादा लेना भी चाह रहे हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, विकास सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है।
Ready? ऐसे नहीं हुआ, विक्ट्री साइन लीजिए एक बार। एवरीबॉडी। दीदी आओ ना। किसकी दीदी नहीं आ गई? अरे वो छोड़िए जा। Ready? Wait. Smile. Wait then. Wait, हो गया बेचारा।